2050 में 50% बच्चे मायोपिक होंगे हमारे देश में। ये बहुत बड़ा एपिडेमिक अभी हमारे भारत में आया है। ऑलमोस्ट 50% लोग जब एक आंख पूरी तरह ब्लाइंड हो जाए तभी डॉक्टर के पास आते हैं, और इतने एडवांस स्टेज में ये ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दो लड़के थे, माँ को लेके आए थे। Somebody had told us that you can't get your vision back. Next day, जब we opened the bandage, she started crying. She said, "I'm seeing my son's face after 20 years." Now I'm going to check your retina. Perfect. Normalize. Okay, good. Good news, guys. इस दुनिया से अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो वो है जो इस ज़बान ने स्वाद चखे और जो इन आंखों ने दुनिया देखी। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी दुनिया में कई से लोग हैं जिनकी नजर कमजोर है। क्या आप मानेंगे 140 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को आंखों से रिलेटेड इश्यूज हैं। पर वो कहते हैं ना, जो भगवान नहीं देते वो डॉक्टर दे देते हैं। आज की स्टोरीज फ्रॉम भारत के एपिसोड में मैं मिलूंगी एक ऐसे डॉक्टर से जिन्होंने पूरे भारत को गर्व महसूस कराया है। I am visiting the all-new center of Sri Ramakrishna Nethralaya in Chembur and meet Dr. Nitin Deshpande, who has transformed lives of thousands of patients in the last 18 years. Let's go. Hello, doctor. Welcome, Kamya. Welcome to Sri Ramakrishna Nethralaya. Thank you so much. This is our Chembur branch. Yeah, it looks absolutely fancy, and all Chemburites are very excited that they finally have a reputed Nethralaya right here in the city. So thank you so much for this. Thank you, Kamya. Let me show you around. Please come. Since its inception in 2003, Sri Ramakrishna Nethralaya has been dedicated to one goal: raising awareness about eye health and restoring vision for those in need. Every day, they tirelessly treat countless patients across their 6 centers using state-of-the-art eye care equipment with a vision to help India see better. Our eyes often are the most overlooked organ and truly deserve all the care possible. So we assume a lot of things that have been gifted to us by God, but if you know the facts that 80% जो हम information gather करते हैं वो हम आँख से गैदर करते हैं। योर हियरिंग बोलिए आप, या टेस्ट बोलिए, या स्मेल बोलिए, बट तो आँखें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। और इन पास्ट जो पुराने लिटरेचर्स थे उन्होंने विजन इज इक्वल टू लाइफ बोला है। सो विजन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर, आपकी क्या स्टोरी है? एवरी मंथ यू आर गिविंग आईज और विजन, रादर गुड विजन टू सो मेनी ऑफ योर पेशेंट्स. Where did the story begin from? So I come from a family of doctors, So Okay. my father is an ophthalmologist, my mother is a physician. So that has been जो घर में जो environment होता है. But as मैं MBBS कर रहा था, I realized कि ophthalmology is a very high tech branch. To tell you a story that हम जब post graduation कर रहे थे, we used to go out into the small villages, do eye camps and get those patients back to the hospital. Once I had gone to the camp, I had seen a lady who was completely blind in both eyes because of cataract. जब cataract बहुत बढ़ जाता है तो उसे mature cataract बोलते हैं। And her son just got her holding her hand, and luckily when I was operating in the hospital, she came to my table. So I recognized her. I did her eye surgery, and when I went back for a follow-up visit, the same lady was smiling, standing all by herself at the gate, welcoming our team. That she was so happy about it. So from my post-graduation days, I have seen those life-changing things that a good vision can do. It changes person's life. When I started, I was new in the practice. दो लड़के थे, माँ को लेके आए थे. Somebody had told us that you can't get your vision back, and we did it. And next day, जब we opened the bandage, she started crying. Even her son started crying. So we were wondering why. She said, "I'm seeing my son's face after 20 years." So so such emotional things are very much attached to ophthalmology. तो सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को? What are the kind of common issues that people come to you for? द मोस्ट कॉमन जिसमें विजन लॉस के जो कारण है दैट इज मोतियाबिंद, या जिसे कैटराइट बोलते हैं। तो आप देखिए ये आगे जो क्लियर लेयर है ये हमारी आंख की खिड़की है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद जो ब्राउन पार्ट आप देख रहे हो दैट इज आइरिस, और उसके पीछे जो ये स्ट्रक्चर है इसे लेंस बोलते हैं।
ओके तो ये हमारा फोकसिंग मैकेनिज्म है आँख का, जिससे लाइट रेटिना पे फोकस होती है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये लेंस क्लियर है, बट अगर ये लेंस ओपेक या सफ़ेद हो जाता है तो उसे मोतिया बोलते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ये सफ़ेद लेंस है, और ये अगर सफ़ेद लेंस यहाँ पीछे बैठती है आँख में तो ये लाइट को अंदर अलाउ नहीं करेगी, तो जिसके कारण हमारा दिखना बंद हो जाएगा। तो लोग देखते हैं कि उनको चश्मा पहन के भी साफ नहीं दिखता है, या रात को जब जा रहे हैं तो लाइट फट जाती है, कलर्स अलग दिखना शुरू होते हैं। बेसिकली कैटरैक्ट का ये ग्रीक शब्द है और इसका मतलब है वाटरफॉल। जैसे क्लियर पानी गिर के जो दूध जैसा सफ़ेद होता है, वैसे हमारी क्लियर लेंस दूध जैसी सफ़ेद हो जाती है, उसे मोतिया बोलते हैं। बाकी भी कई सारे प्रॉब्लम हैं। आप देखिए डायबिटीज़ इतना बढ़ गया है, तो डायबिटीज़ से ये जो रेटिना की बीमारियां होती है उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। थर्डली आप एज रिलेटेड डीजनरेशन करके एक बीमारी, कैटरैक्ट के बाद सबसे ज़्यादा होने वाली ग्लोबली एक बीमारी है, जिससे जो हमारा पर्दा है उसके पीछे ब्लीड होता है या उस पर स्कारिंग होती है, जिससे नज़र कम हो जाता है। चौथी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे झामर, काला पानी या ग्लॉकोमा बोलते हैं। 100 लोगों में 1 या 2 लोगों में ये पाया जाता है, और ये साइलेंट डिजीजेस है कई सारे जो आपको पता नहीं होता है कि आपको है। तो इसलिए हर साल आई चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। Is there a way to avoid it by any chance? Is it in our control कि हम अपने आंखों का अच्छे से ध्यान रखें ताकि हमें आई रिलेटेड इश्यूज ना हो? जो सिनाइल कैटरैक्ट है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज इट्स अ एजिंग चेंज ऑफ योर बॉडी। बट जो प्रिवेंटेबल कैटरैक्ट वगैरह है, जैसे आप स्टेरॉयड यूज बोलते हैं, तो अगर आप स्टेरॉयड प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर के गाइडेंस से लें, वो सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। या इंजुरी है, इफ़ यू यूज प्रोटेक्टिव गियर, अवॉइड डायरेक्ट आई इंजुरीज। बट जो सिनाइल है या जो यूवीआइटिस या बाकी कारणों से होने वाला है, वो आप अनफॉर्चुनेटली अवॉइड नहीं कर पाते। What about screen time? People spend a lot of time on mobile these days. Yes. Does it affect our eyesight? It does have bad effect on your eyes in a way. Most common effect it has is dryness. तो आप देखिए जब हम किसी चीज़ पे फोकस करके काम करते हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो ब्लिंकिंग कॉन्शियसली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू टेक सम ब्रेक्स। लाइक आप 20 मिनट काम कर रहे हो स्क्रीन पे, तो वी कॉल इट अ रूल ऑफ 20-20 कि 20 मिनट आप काम कर रहे हो तो 20 सेकेंड्स आप कहीं दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, क्योंकि हमारे आँख में मसल्स है, दे ऑल्सो गेट फटीग्ड, यू नो, लाइक योर बॉडी मसल। And through your center, I've been seeing that there are a lot of fancy equipments, machines. I want to know, you know, is there a different way in which you are treating cataract and other eye-related issues, like you mentioned? There are so many diseases of the eye and हर एक का way of treatment is very different. तो जैसा आपने कैटरैक्ट बोला, तो कैटरैक्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। तो आजकल हम कैटरैक्ट सर्जरी सिर्फ नज़र देने के लिए नहीं है, बट अच्छी नज़र देने के लिए है। तो ये अभी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कैटेगरी में चला गया है। नॉट ओनली रिवाइविंग द विजन ऑफ द पर्सन, तो उनका चश्मे का नंबर भी हमको इतना कम करना है कि उनको ज़्यादा चश्मे पे निर्भरता न रहे। जो पहले बड़े लंबे कट लगते थे, स्टिच लगते थे, अभी there are no stitches. The whole surgery is just done with drops. Last 5 years, we have largely shifted to bladeless robotic surgeries, and the same company has come up with a very advanced form of robotic surgery called Ally, जो भी recently got in our clinic, जिससे कुछ 20 seconds में सारे आँख के कट्स हो जाते हैं, and it is completely painless. Patients मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो 1000 ऑपरेशन किए, why do you need a robot to do this surgery? It is about precision, it is about safety. अगर ये सारे कट्स परफेक्ट होते हैं तो आपका सर्जरी बहुत सेफ हो जाता है। व्हेन वी आर यूथफुल, हमें दूर का भी दिखता है, नज़दीक का भी दिखता है। सो व्हेन यू गो इनटू 40s यू रियलाइज, अरे अभी नज़दीक का नहीं दिख रहा है। व्हेन वी आर डूइंग अ कैटरैक्ट, वी हैव गुड लेंस इम्प्लांट्स नाउ व्हिच कैन ब्रिंग बैक योर यूथफुल विजन, यू नो, दैट यू एक्सपीरियंस से 30-40 years बैक। तो हम लेसिक कई ऑलमोस्ट 18 साल से कर रहे हैं अभी। तो हमने बहुत एवोल्यूशन देखा है लेसिक में। हमने 18 साल पहले जब चालू किया तभी भी लेसिक बहुत एडवांस्ड और इट वाज अमेजिंग टेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छी तरह हम नंबर निकाल पा रहे थे। बट मशीन्स में एवोल्यूशन हुआ है, सॉफ्टवेयर्स में एवोल्यूशन हुआ है। तो लेसिक में क्या किया जाता है कि हम एक बहुत पतली परत कॉर्निया में क्रिएट करते हैं जिसे फ्लैप बोलते हैं। तो 18 साल पहले ये फ्लैप हम एक मशीन से करते थे ब्लेड द्वारा, जिसे माइक्रोकेराटोम बोलते हैं। तो ये फ्लैप उठाया जाता है, लेज़र से रीशेप किया जाता है और फ्लैप रख दिया जाता है, जो बहुत ब्यूटीफुली हील हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि लेज़र्स इवॉल्व हुए, तो उसके बाद ये जो परत या हम फ्लैप बनाते हैं वो हमने लेज़र से करना शुरू किया फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 years. Why you need a laser to create a flap? It is safer. प्रिसीजन बहुत बढ़ गया।
क्योंकि समझो हमें 100 माइक्रॉन्स का फ्लैप बनाया तो वी गॉट परफेक्ट 100 माइक्रॉन्स विद द लेजर। ब्लेड से भी ये प्रोसीजर पेनलेस था, लेजर से और कंफर्टेबल हो गया। So the new technology that we recently introduced is called SmartSight, which is from a German company called Atos. It's a Schwind company जो लीडर है ये टेक्नोलॉजी में। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी में इट्स देयर इज नो फ्लैप। जो पहले 270 डिग्री कट हुआ करता था, नाउ इट इज ओनली 30 डिग्रीज। सो लेस नर्व्स आर डिस्टर्ब्ड, सो ड्राइनेस कम हो गया, देयर इज नो फ्लैप। तो आप मल दो या कोई इंजुरी हो जाए आपको तो देयर इज नो फ्लैप विच कैन गेट डिस्टर्ब्ड। ये सर्जरी हम बहुत बारीक कट से करते हैं विच इज 30 डिग्रीज, इट हील्स इन नो टाइम। ये पूरा लेजर प्रोसीजर है, सिंगल स्टेप। सो लेजर से माइक्रो बबल्स फॉर्म होते हैं कॉर्निया में, और ये माइक्रो बबल्स प्लेन तैयार कर देते हैं जहां हम सेपरेट कर पाते हैं वो लेयर को। तो 2 लेयर किए जाते हैं, एक आगे एक पीछे, और जो बीच वाला बहुत पतला टिश्यू है फ्यू माइक्रोन्स का, वो हम बहुत बारीक कट से निकाल देते हैं, जो इट गिव्स द सेम इफेक्ट लाइक अ लेसिक। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं नई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 10 साल से है, बट बहुत इवॉल्व हुई है। देयर आर बाकी काफ़ी कंपनियां ये फॉर्म के मशीन्स तैयार करती हैं, बट वाई एटॉस? क्योंकि जो उनका टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन बाकी मशीन से बेहतर हुआ है। Because eyes are so delicate. I want to know, you mentioned about cataract and the next day you can actually lead a normal life. We don't admit the patients. Okay. It's a daycare surgery. तो हम मॉर्निंग में बुलाते हैं. There is preparation. There are pre-operative checks. After that, we take the patient for the. If they are doing bladeless, then we finish the bladeless part first, and then we take them to the main operation theatre. With experience, we are able to finish surgery in 7 to 8 minutes. Just with drops, it's painless. We just give a goggle to protect the eye. There is no need to put a bandage nowadays because we don't really anesthetize the eye. So इसके कारण क्या होता है कि आपका पेशेंट को इमीडिएटली काफ़ी हद तक दिखना शुरू होता है। नॉर्मल नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट थोड़ा हेजी होगा सबको, बट वो कुछ घंटों में क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द आई सर्जरीज अभी डे केयर है, पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड रिकवर इज़ वेरी गुड बिकॉज इट्स ऑल ब्लेडलेस, कट्स आर माइक्रो कट्स, सो इवन लेंसेज वी पुट आर थ्रू वेरी माइन्यूट कट. कैटरैक्ट कट इज ओनली 1.8 to 2 millimeters, सो इट हील्स इन नो टाइम. जब कैटरैक्ट करते हैं या कोई आँख के अंदर की सर्जरी करते हैं तो हमेशा एक ही आँख एक बार करते हैं. हम दोनों आँखें सेम डे ऑपरेट नहीं करते. अगेन इट इज़ अ सेफ्टी मेजर दैट वी डू. वन कैटरैक्ट सर्जरी यूजुअली टेक्स 7 to 8 minutes. With the new bladeless machine, all the cuts are done in 20 to 30. For a patient, it's a painless experience. Painless. Yes. Wow, and you get your vision back. So other than cataract, what else is very, very common, and where is it that you hold in expertise? Yeah. So I'm a glaucoma surgeon. So glaucoma कई शब्दों से जाना जाता है, यानी कुछ लोग उसे काला मोतिया बोलते हैं. ये जो बेसिकली हमारी आँख है, तो यहाँ सिलियरी बॉडी करके स्ट्रक्चर होता है जिससे आँख का पानी तैयार होता है. उसके अंदर पानी होता है जिसे एक्वस बोलते हैं. तो ये एक्वस जो है ये पीछे फॉर्म होता है लेंस के बाजू से, और ये जो आप सेंट्रल होल देख रहे हो प्यूपिल, उससे आगे आता है और यहाँ से बाहर चला जाता है, हमारे ब्लड वेजल्स में एब्सॉर्ब हो जाता है. तो ग्लॉकोमा कब होता है? जब ये जो फ्लो की प्रोसेस है, जो फॉर्म होना और आँख के बाहर जाना, ये किसी कारण से अगर डिस्टर्ब होता है तो उसे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है. तो आँख का प्रेशर बढ़ने से ये जो सारा प्रेशर है आँख का, ये पीछे नर्व पे गिरता है जो ऑप्टिक नर्व है. तो ये जो रेटिना है, यहाँ बहुत सारे मिलियंस ऑफ फाइबर्स सेल से तैयार होके फिर ये नर्व बनता है. तो ये जब फाइबर्स डैमेज होना शुरू होता है तो धीरे धीरे वो पर्सन का बाजू का नज़र कम होता है, और एकदम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्लॉकोमा, तभी सेंट्रल विजन जाता है. तो ग्लॉकोमा का प्रॉब्लम ये है कि ये असिम्प्टोमेटिक है. लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है. ऑलमोस्ट 50% लोग जब एक आँख पूरी तरह ब्लाइंड हो जाए तभी डॉक्टर के पास आते हैं, और इतने एडवांस स्टेज में ये ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये कभी भी हो सकता है और किसी भी हो सकता Exactly. है. तो ग्लॉकोमा भी एज रिलेटेड इन अ वे है, क्योंकि ये ओल्ड लोगों का ज़्यादा अफेक्ट करता है, और ये लार्जली जेनेटिक बीमारी है, यानी आपके पूर्वजों से आप में ये जीन्स आते हैं, और ऐसे कई जीन्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो ग्लॉकोमा का कारण है. दूसरा, हमारा जेनेटिकली आँख का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जी कुछ लोगों की आंखें छोटी होती है, और जैसे बहुत स्ट्रक्चर्स आँख के अंदर जो होते हैं वो बाजू बाजू में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे ये पानी का फ्लो अफेक्ट होता है,
उससे भी ग्लॉकोमा होता है। बाकी कई ग्लॉकोमा के कारण है, जैसे इंजुरी से या सूजन आने से या स्टेरॉयड ड्रॉप डालने से, ऐसे कई सारे बाकी भी कारण हैं ग्लॉकोमा होने के। बट सबसे कॉमन जेनेटिक रीज़न होता है, और जो आप एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। तो इसीलिए जब किसी को ग्लॉकोमा होता है तो हम उनको बोलते हैं कि जो आपके खून के रिश्तेदार है, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, आपके बेटे बेटी हो, उनको ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि ये अगर हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम आगे का डैमेज बहुत हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एक बार विजन अगर लूज हो जाए, इज इट पॉसिबल टू रिट्राइव इट? ये इरिवर्सिबल ब्लाइंड डिजीज़ है। जो आप डैमेज हो गया है वो हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि रेटिना ये ब्रेन का एक्सटेंशन है और न्यूरोलॉजिकल टिश्यू आप रीजनरेट नहीं कर पाते हो। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि एक बार जो डैमेज हो जाता है वो रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। कन्वेंशनल सर्जरी में स्टिचेस होते हैं, एडिशनल कट्स होते हैं, बट माइक्रो इंसिजन ग्लॉकोमा सर्जरी में ना ही एडिशनल कट्स लगते हैं ना स्टिचेस लगते हैं। एक और बहुत ही कॉमन चीज, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने लेसिक कराया है, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग ग्लासेस फॉर कॉस्मेटिक रीजंस और जस्ट टू लुक अ सर्टेन वे, फॉर कंफर्ट रीजन। उसमें क्या एडवांसमेंट हुई है? विद न्यू टेक्नोलॉजी हम सारे नंबर्स अब ट्रीट करते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी आ सकते हैं। तो लेसिक सबसे कॉमन सर्जरी है जो नंबर हटाने के लिए की जाती है। तो इससे हम कॉर्निया रीशेप करते हैं। तो ऐसे इतना प्रिसाइजली रीशेप किया जाता है कि नेचुरल आँख की तरह ये कॉर्निया अभी लाइट अपने पर्दे पे फोकस करना शुरू कर देता है। तो फिर उसके बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेसिक करने के लिए उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, कि आपकी आई का ग्रोथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि आपका नंबर स्टेबल हो। जो विमेन है जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, उन लोगों में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उन लोगों में हम रुकने के लिए कहते हैं, जब आपका हार्मोनल स्टेटस नॉर्मलाइज हो जाए तब हम लेसिक के बारे में सोच सकते हैं। लेसिक करने के लिए आँख नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हम लेसिक कई ऑलमोस्ट 18 साल से कर रहे हैं। अभी मशीन्स में इवोल्यूशन हुआ है, सॉफ्टवेयर्स में इवोल्यूशन हुआ है। When patient lies down there with the head there, and this is the piece that touches the cornea, Right. and we see through this screen, and everything is planned on that software, on that Okay. this is a computer, and once everything is fed, the laser makes the cut in 30 seconds, Okay. and it's painless, just done with drops. So once cut is done, we see through this, to separate the cut and just bring that little lenticle out. It is as thin as 50 microns. My God. And how So long is the it's- whole procedure? 3 minutes per eye. That's it. And then you do it both at the same time, or you give for LASIK is a LASIK? surface procedure, so Right. it's safe. तो लेसिक में क्या किया जाता है कि हम एक बहुत पतली परत कॉर्निया में क्रिएट करते हैं, जिसे फ्लैप बोलते हैं। तो 18 साल पहले ये फ्लैप हम एक मशीन से करते थे, ब्लेड द्वारा। सो द न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्मार्ट साइट, विच इज फ्रॉम अ जर्मन कंपनी कॉल्ड एटॉस। इट्स अ श्विंड कंपनी जो लीडर है ये टेक्नोलॉजी में। जो पहले 270 डिग्री कट हुआ करता था, नाउ इट इज ओनली 30 डिग्रीज। सो लेस नर्व्स आर डिस्टर्ब्ड, सो ड्राइनेस कम हो गया। ये सर्जरी हम बहुत बारीक कट से करते हैं, विच इज 30 डिग्रीज। इट हील्स इन नो टाइम। बाकी काफ़ी कंपनियां ये फॉर्म के मशीन्स तैयार करती हैं, बट वाई एटॉस? क्योंकि जो उनका टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन बाकी मशीन से बेहतर हुआ है। 30 सेकंड में सारे कट्स हो जाते हैं। साइक्लोटॉर्जन कंट्रोल एंड सेंट्रेशन कंट्रोल, दैट्स व्हाट मेक्स स्मार्ट साइट बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज। ग्रेट। और लेसिक और स्मार्ट साइट के सर्जरी के बाद कितने दिनों के लिए हमें घर बैठना होता है, या डार्क ग्लासेस पहनकर बैठना होता है? इज देयर लाइक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन वन मस्ट टेक? सो डार्क ग्लासेस आर आउट बिकॉज Okay. देर इज, पहले क्या हुआ था कि कट्स बड़े होते थे तो सनलाइट से बहुत तकलीफ होती थी। उसे फोटोफोबिया बोलते हैं, विच इज आउट बिकॉज कट्स हैव बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल। तो आजकल वी गिव क्लियर गॉगल्स just for a dust protection. Otherwise, in both LASIK and cataract, recovery is pretty fast. We generally don't allow the person to take a hair wash for a week because all that soap might go into the eye. Right. We tell them not to rub their eyes, and the basic care is enough to recover very well. After cataract or after LASIK, you may have little irritation, watering for that day, but next day person is quite comfortable.
कई बार ऐसे नंबर सुनते हैं -80 माइनस, सो व्हाट इज द अपर लिमिट? So in 18 years of practice, we have seen extreme numbers. Yeah. Like we have treated people with -24 also, and on plus side we have treated -8, 9 also. But there are different options. पहले हमें इवेल्युएट करना होता है कि उस व्यक्ति के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है. तो ऐसा नहीं कि सबको लेसिक कर दो. नॉट एवरीबडी इज फिट फॉर लेसिक. लेसिक का लिमिट है -8 स्फीयर एंड -6 सिलेंडर. तो -8 तक हम लेसिक कर पाते हैं. बट जब नंबर उसके आगे चला जाता है, या कुछ लोगों में पुतली बहुत पतली होती है, तो वो आप लेजर करके उसको वीकन नहीं कर सकते हो. तो ऐसे लोगों में हम इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंसेस यूज करते हैं, जो बहुत थिन लेंसेस हैं. और हम ये आई मॉडल देखें, ये जो हमारा लेंस है, तो ये ऐसा बहुत पतला लेंस हम अंदर डाल देते हैं जो आपके नेचुरल लेंस के आगे बैठता है. सो विद दिस वी हैव करेक्टेड इवन -24 एंड इट इज लाइफ चेंजिंग बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग देयर जॉब्स. They're getting married because person with such high glasses, a lot of challenges are there. And the best part is these lenses sometimes make their vision better than spectacles also. So that is the beauty of this technology. जब बात सर्जरी की आती है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एप्रीहेंसिव कि क्या होगा, सेफ है या नहीं है, कराना चाहिए या नहीं चाहिए. दे आर लाइक वी आर ओके विद दिस अनक्लियर विजन बट दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. आई वांट टू नो डॉक्टर, आपने आज तक कितनी सर्जरीज, कितने लोगों को ट्रीट किया है, सो दैट पीपल बिल्ड कॉन्फिडेंस. इफ यू कैन शेयर सम नंबर्स विद अस, योर एक्सपीरियंस, एंड सेकेंडली हाउ सेफ इज इट? So I have been doing cataract for last 18 years. हमने करीब हमारे क्लिनिक में 5 लाख से ज़्यादा लोग एग्जामिन किए हैं आज तक. So we are very fortunate that people have patronized us for so many years. And they have trusted us with their eyes. Ramakrishna Netralaya is a NABH accredited hospital. Now NABH accreditation is the highest accreditation for patient safety. So we make sure that safety is first. We are very much patient centric. We have more than 100 staff which is very dedicated. And we have the best machinery to even take care of sterilization like B-class autoclaves. We have laminar airflow in all our centers. Infection rates fortunately have dropped a lot, almost near zero, because everything is disposable now. So all these things have really given a lot of safety to the patient. जो लोग डरते हैं, what is the worst case scenario? I'm sure you've had a good success rate here, but अगर कोई सर्जरी अच्छी ना जाए तो क्या हो सकता है उनके साथ? Any complication that happens is manageable. That is why you need experienced surgeons, right? But जब complication होता है, तब जो हमने हजारों operations किए हैं, we have faced all the problems in the past. That is why you need a senior and an experienced surgeon to help you. We make sure that there is no severe vision loss or nobody loses vision. We have a great team of consultants which are trained in each part of your eye. Like if there is a cornea problem, we have a cornea surgeon. So we have a great team of doctors which is available at that point. Right. So even we don't have to send the patient back and call them back. They are there. True. So if there is any problem, as long as it is manageable, then it's fine. The cases of vision loss are extremely, extremely rare now. Right. With the great skill and great technology, I think things have got much better for the people. डॉक्टर, लिटिल ऑफ टॉपिक, बट जब हमें दुख होता है तो आंखों से आंसू क्यों आते हैं? It's a natural reaction. And the problem is when you get watering after you have dry patches, Right. it doesn't stay on your eye, so it is of no use. अच्छा. So there is the watering that you get after developing dry patches doesn't really help in replenishing your tear film. ओके, बट रोना अच्छा होता है, आंखों की एक्सरसाइज होती है उसमें. रोना कभी भी अच्छा नहीं होता है. I hope nobody has to cry either. In our screen-heavy lifestyles today, our eyes often suffer from dryness due to extended device use. This can cause discomfort, irritation, and blurry vision, impacting our daily activities. Break लेना, regularly blink करना और eye drops की मदद से we can keep our eyes refreshed and healthy. तो ड्राइनेस, हमारी जो आँख पे टीयर फिल्म होता है वो कई लेयर्स का होता है, और हमारे पास अभी ऐसे डायग्नोस्टिक्स है जिससे हम ये जान पाते कि एग्जैक्टली विच लेयर इज अफेक्टेड.
Okay. and we can treat that exact layer. There are new technologies like LipiFlow या intense pulse light या IPL, तो जिससे कारण हम ये ग्लैंड्स खोल देते हैं और फिर आपका टीयर फिल्म रिस्टोर हो जाता है. We have great drops now which drops that act on that particular layer. If we know that particular layer of your tear film is deficient, we can give you eye drops that specifically restore that. किस तरह से बच्चों की आईज का हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं? सो नंबर आने में जैसे जेनेटिक्स आपने बोला उतना ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. तो एक स्टडी की गई कि सेम एथनिसिटी के बच्चे जो सिंगापुर में पढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, तो जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे और आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करते थे, उन लोगों में नंबर कम बढ़ा कंपेयर टू किड्स इन सिंगापुर who were glued to their screens. तो जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं उनमें नंबर बढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है. प्रॉब्लम ये है कि कई बार बच्चे कंप्लेंट नहीं करते हैं कि उनको नहीं दिख रहा है. तो मेनी टाइम्स योर टीचर्स और पेरेंट्स गेट देम टू अस कि बच्चा टीवी के बहुत नज़दीक जाके टीवी देख रहा है, तो ये एक साइन है कि उसे शायद ठीक से नहीं दिख रहा है. या कुछ बच्चे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं एंड पेरेंट्स फील दैट माय चाइल्ड इज नॉट ब्राइट, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम. आउटडोर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट. इट हैज बीन फाउंड बाय मल्टीपल स्टडीज दैट योर एक्सपोजर टू सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग दिस मायोपिया प्रोग्रेस. नाउ भारत में मायोपिया बहुत बढ़ रहा है. मायोपिया यानी आंख नॉर्मल से लंबी हो जाती है और उसको करेक्ट करने के लिए आपको माइनस चश्मा लगाना पड़ता है. तो ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया है और 2050 में 50% बच्चे मायोपिक होंगे हमारे देश में. तो ये बहुत बड़ा एपिडेमिक अभी हमारे भारत में आया है, जो पहले साउथ ईस्ट एशिया में था, लेकिन पोस्ट कोविड ऑलमोस्ट 50% बच्चे मायोपिक होंगे. जो सीवियर या हाई मायोपिया बोलते हैं, पैथोलॉजिकल मायोपिया, उसका परसेंटेज 11 टाइम्स बढ़ गया है. तो व्हाई डू यू नीड अर्ली डिटेक्शन इज अगर हमें सही समय पे पता चले जो व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग. सो हाउ डू यू कम टू नो के प्रॉब्लम है. तो बच्चों को प्री स्कूल एज में ज़रूर आँख चेक करवानी चाहिए और हर साल आई चेक करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. योर स्क्रीन टाइम इज नॉट गोइंग टू गो अवे. मोस्ट ऑफ द एजुकेशन मटेरियल इज ऑन द स्क्रीन्स नाउ. बट अगर हमें पता चलता है, सो वी हैव मीन्स to control the rapid increase in the myopia. So how do we do that? Is there are a lot of good drops now. They are called as low dose atropine drops, जो डालने से ये नंबर प्रोग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में आता है. We can also talk to the child and parents to modify the lifestyle. Child is not playing enough outside. He doesn't have good exposure to sunlight. Then we can always counsel the parents and the child to do that more. Then there are special glasses now which are specially designed to control myopia. There is something called as peripheral defocus that they use that optical system, जिससे आंखों का जो टेंडेंसी है लंबा होने का वो काउंटर होता है. इस लेवल पे रहता है कि उसके कारण कोई आंखों में कॉम्प्लिकेशंस ना हो. हमारे शो का नाम है स्टोरीज फ्रॉम भारत, एंड ऑफ कोर्स आपको हमने फीचर किया है इन दिस शो बिकॉज यू आर ट्रूली मेकिंग इंडिया प्राउड. मैं ये जानना चाहूँगी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल रीजंस. When it comes to eyesight, do you have a lot of patients coming in from different countries or NRIs coming in consulting you? So India, the best part is access to the healthcare is excellent. We have the best technology that can be offered globally. So we do get expats and other people who are the Indians who have traveled abroad. Eye is a small organ, but diseases are very diverse. Absolutely. And so many people have eye problems. And I'm sure everybody must get their eyes tested for Yeah. sure, right? Yeah. You've truly inspired me to get my eyes tested today. Yes. तो मैं एक तो अपनी आंखें चेक करवाना चाहूँगी, प्लस मैं आपकी टेक्नोलॉजी देखना चाहूँगी कि किस तरह से the machines here that are absolutely updated and how they all function. Definitely. Yeah? Okay. Please come, let's see. Keep your chin up. Now I'm going to check your retina. Perfect. Normalize. Okay, good. Good news, guys.